Hello friends, today we are going to learn number system. As you know, it is the first chapter of class 9th. Let's start. Number of various types such as real number, rational number, irrational number, integer, whole number and natural number. We'll start with natural number. Now, natural number, it is a set which begins from 1 to infinity. Okay? The number which starts from 1 to infinity is known as natural number and it is denoted by capital N. Then we will move toward whole number. When we add 0 to the natural number, then it becomes whole number. The set which begins from 0 to infinity is known as whole number, which is denoted by capital W. The set which begins from 0 to infinity is known as whole number, which is denoted by capital W. Now, what is integer? Integer means what? The negative numbers, positive numbers and zero number. The set which contains negative number, positive number and zero is known as integer. Integer which is denoted by capital I. Now, let's start. Rational number. Now, what is rational number? Rational number is a number which can be expressed in the fraction such as a upon b, where b is not equals to 0, or p upon q, where q is not equals to 0. It may be positive, negative or 0. The collection of rational number is denoted by capital Q. Okay. Now, for example, 1 upon 2, 3 upon 4 or single 1. When number is in the form of 1, it means the denominator is 1. Okay. Then the integer, whole number and natural number all are rational number. And the rational number is repeating and terminating. Okay, the number which terminate and which repeats is known as rational number. Now let's start irrational number. Irrational number is a number which is totally opposite to rational number. Okay, irrational number is a number which is totally opposite to rational number, which is denoted by capital S. For example, 0.12345678912345 12345 whatever, non-terminating. The difference between rational and irrational is rational number is terminating. Okay. The number which terminate is known as rational number, and the number which non-terminating is known as irrational number. Irrational number is denoted by capital S. Sometimes it is denoted by sign, root, square root, cube root, fourth root, fifth root, whatever it may be. For example, root 3, root 5. These numbers are non-repeating and non-terminating. Most important, non-repeating. Okay, the conditions are non-repeating and non-terminating. Now, let's start real number. What is real number? Real number is a set of rational number and irrational number. The set which contains rational number and irrational number is known as real number, and real number is denoted by capital R. Now, what is decimal expansion? Okay, we have seen the type of numbers. Now we'll move toward decimal expansion. Now, what is decimal expansion? Decimal expansion means when we write a fraction in the form of decimal expansion in a complete term is known as decimal expansion. Now, decimal expansion will be terminating, second non-terminating, third recurring means repeating. Okay, and fourth one is non-recurring means non-repeating. Now let's start with terminating. If the numerator is divided by denominator and if it is completely divisible, then it is said to be terminating. What it means कि जब भी हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे और वो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो डिविजिबल है. फॉर एग्जाम्पल 2/4, एकदम ईजी एग्जाम्पल से स्टार्ट कर रहे हैं. 2/4 मीन्स वॉट? 0.5. ओके, तो यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है. टर्मिनेट हो रहा है, इसका मतलब वो डेसिमल एक्सपांशन कौन सा फॉर्म है? टर्मिनेटिंग. देखिए, डेसिमल एक्सपांशन है. डेसिमल जहाँ पे पॉइंट आता है उसे बोला जाता है डेसिमल, एंड एक्सपांशन मीन्स जब हम फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में एक्सपांड कर रहे हैं उसे बोला जाएगा डेसिमल एक्सपांशन. और जब वो टर्मिनेट हो रहा है तो वो आता है टर्मिनेटिंग. नाउ इसका ही अपोजिट होगा नॉन टर्मिनेटिंग. इफ द न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एंड इफ इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल देन इट इज सेड टू बी नॉन टर्मिनेटिंग.
फॉर एग्जाम्पल 1/3, 1/3 क्या आएगा? 0.333। और ये कैसा हुआ है? नॉन टर्मिनेटिंग। कहीं टर्मिनेट हो रहा है ये? नहीं। तो इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग। ये भी डेसिमल एक्सपांशन है बट नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ नेक्स्ट टाइप, रिकरिंग। इफ द न्यूमरेटर इज डिवाइडेड by denominator and if it is not completely divisible and the number in question keep repeating, then it is said to be recurring. फॉर एग्जाम्पल 0.12121212। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेट रिपीट हो रहा है। कौन सा सेट रिपीट हो रहा है? 121212। तो जहाँ पे एक ही पर्टिकुलर नंबर रिपीट हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन में, उसे बोला जाएगा रिकरिंग। एंड नॉन रिपीटिंग मीन्स व्हाट? टोटली अपोजिट टू रिकरिंग। इट इज अपोजिट टू द रिकरिंग एंड सिमिलर टू द टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0.5, ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिकरिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है 0.12341 2 3 4 5, यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स which will you use in your problem solving methods. Okay, let's start. Now first one, whenever you add rational number and irrational number, इन शॉर्ट जब भी हम रैशनल और इरेशनल नंबर का एडिशन या सब्सट्रैक्शन, सम और डिफरेंस ले रहे हैं, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल। ओके, जब भी आप प्रोडक्ट और डिवीजन मीन्स प्रोडक्ट या क्वोशंट, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ले रहे हो, रैशनल का और इरेशनल का, इट विल ऑलवेज बी एन इरेशनल नंबर। एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, चारों में अगर एक रैशनल और एक इरेशनल है तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? इरेशनल नंबर। ओके, नाउ लास्ट फैक्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगर दोनों भी इरेशनल नंबर का ही हो रहा है, मतलब इरेशनल नंबर ही इरेशनल नंबर में ऐड किया जा रहा है, इरेशनल नंबर ही इरेशनल नंबर से सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है, डिवीजन, कुछ भी, चारों में से कुछ भी हो, तो इसका आंसर हमेशा इरेशनल आएगा, ऐसा नहीं है। समटाइम्स इट विल बी रैशनल। ओके, कभी इरेशनल भी हो सकता है, कभी रैशनल भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम में आता है राइट एंगल ट्रायंगल। व्हाट इज राइट एंगल ट्रायंगल? जब भी ट्रायंगल में कोई एंगल ये 90 डिग्री का हो तो उसे बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, when a triangle contains 90 degree angle is known as right angle triangle and the side opposite to right angle is known as hypotenuse. मीन्स राइट एंगल के अपोजिट यानी सामने वाली जो साइड होगी उसे हम बोलेंगे हाइपोटेनियस। और पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग हमेशा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हमेशा रिमेनिंग टू साइड्स की क्या रहेगी? स्क्वायर की एडिशन। अब टू साइड यानी कौन सी? सबसे पहले तो ये बनता है बेस और ये जो रहेगा उसे बोला जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स। ओके, तो यहाँ क्या बनेगा? हाइपोटेनियस क्या हुआ? AC। AC स्क्वायर इक्वल्स टू साइड AB स्क्वायर एंड प्लस BC स्क्वायर। ओके, विल मूव टूवर्ड्स सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ आपको न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होगी। जब भी अंडर रूट में कोई दो नंबर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको वो आइडेंटिटी कैसी रहेगी? अंडर रूट ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंडर रूट में दो नंबर है, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 3 इंटू 6, तो इसे ही हम कैसा लिख सकते हैं? √3 इंटू √6। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इसके बदले में बड़े बड़े नंबर्स होंगे जो आपको सॉल्व करने में ईजी जाएंगे, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। अब अंडर रूट ए अपॉन बी, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? सिंपली आपका जो स्क्वायर रूट है वो हमेशा वो क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है। अब यहाँ न्यूमरेटर के लिए और डिनोमिनेटर के लिए सेपरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट 1/4 है, तो ये क्या बनेगा आपका? अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 4, तो 1 ही आएगा और अंडर रूट 4 आएगा 2। ऐसे सिंप्लीफाइड करने के लिए कुछ आइडेंटिटीज़ आपको यूज़फुल होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आइडेंटिटी है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इन अनदर ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। तो सिंपली हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि मैं अगर आइडेंटिटी बताऊँ तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर सिर्फ अंडर रूट ए से पूरे ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। देखिए मैंने क्या किया है, पहले इसको लिया है, ये टर्म को कम्प्लीटली इसमें मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन, प्लस अंडर रूट बी और ये सेम स्क्वायर यहाँ पे आएगा। ओके, नाउ अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, जब भी दो अंडर रूट में दो सेम टर्म्स आती है तो क्या आएगा? ए माइनस
अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी क्या होगा बी। ओके, अब यहाँ पे ये जो आइडेंटिटी है यहाँ पे आपको इसकी रिवर्स यूज़ कर सकते हो। आप देखिए अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम अंडर रूट ए बी, ए माइनस ये क्या आएगा अंडर रूट ए बी प्लस अब यहाँ पे अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए है। अब दोनों पॉजिटिव है, कोई निगेटिव है नहीं, तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ए बी माइनस बी। तो यहाँ प्लस और माइनस में क्या हो रही है कट, तो इसका आंसर क्या आ रहा है ए माइनस बी। तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो क्या आएगा ये ए माइनस बी। ओके, नाउ ए प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी। अब यहाँ पे भी सेम वे में सॉल्व करेंगे हम, प्लस अंडर रूट बी ए माइनस अंडर रूट बी। ओके, सेम वे में पहले ए लिया है फिर ये पूरे ब्रैकेट को लिया है प्लस अंडर रूट बी और कंप्लीट ब्रैकेट। ए इंटू ए क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा ए अंडर रूट बी, यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी बी। अब देखिए यहाँ पे दो जगह अगर आप देखो p इंटू क्यू इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं q इंटू पी। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस अब ये ए रूट बी प्लस ए रूट बी माइनस बी, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आपकी आइडेंटिटी क्या बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी। ओके, नाउ नेक्स्ट अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इन अंडर ब्रैकेट अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी। तो यहाँ पे अंडर रूट ए से पहले नेक्स्ट ब्रैकेट को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, प्लस अब अंडर रूट बी से करेंगे वही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट सी, तो डायरेक्टली करते हैं अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट डी, यहाँ पे आएगा ए डी, अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी, ये क्या आएगा बी सी, और अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट बी डी। ओके, इसको हम थोड़ा सीक्वेंस में लिख लेते हैं तो अच्छा लगता है ना। क्या आएगा ए सी अंडर रूट बी सी अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी डी। ओके, नाउ मूव टूवर्ड अनादर। You know very well that is a प्लस बी स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी आपको पता है क्या है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सेम ए स्क्वायर मीन्स क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी क्या आएगा ए बी। ओके, प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट बी स्क्वायर। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, तो क्या आएगा ये ए स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी यानी क्या आएगा अंडर रूट ए बी प्लस बी, सॉरी यहाँ स्क्वायर हो गया। ओके, ए प्लस टू अंडर रूट ए बी प्लस बी। अब सबसे इम्पॉर्टेंट, जब भी आपको कोई रूट वाली डिनोमिनेटर में कोई फैक्ट है मतलब कोई नंबर्स है रूट में और उसको आपको रैशनलाइज करना है तो आपको करना कैसे है। टू रैशनलाइज वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी वी मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर में सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस है तो आप क्या करोगे माइनस। ओके, बस सेम नंबर से आपको डिनोमिनेटर ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों नंबर्स लेना है और आपको मल्टीप्लाई करना है। तो वन अपॉन अंडर रूट ए प्लस बी, इसको आप रैशनलाइज कैसे करोगे अंडर रूट ए माइनस बी अंडर रूट ए माइनस बी। तो ये क्या हुआ है वन इंटू, तो ये सेम नंबर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे जैसे कि हमने ऊपर आइडेंटिटी देखी है। ओके, आइडेंटिटी कौन सी वाली आइडेंटिटी देखी थी हमने ऊपर थर्ड नंबर में देखी है अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, क्या आएगा ये ए। ओके, अंडर रूट ए इंटू बी अंडर रूट ए इंटू बी प्लस बी इंटू अंडर रूट ए, और ये प्लस बी माइनस बी क्या होगा माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा अंडर रूट ए माइनस बी ए, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी कैंसिल क्योंकि ये एक माइनस है और एक प्लस है और ये आएगा माइनस बी स्क्वायर। तो रैशनलाइज करते क्यों है क्योंकि वहाँ का जो नंबर है जो स्क्वायर रूट में जो नंबर है वो नंबर कैंसिल हो, इसीलिए हम रैशनलाइज करते हैं। ओके, अब कुछ लॉज देखेंगे हम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जहाँ पे एक्स वाई इज ग्रेटर दैन जीरो बी ए रियल नंबर। एक्स और वाई क्या रहेंगे यहाँ पे रियल नंबर मीन्स रैशनल और इरैशनल, और एम और एन ये रहेंगे रैशनल नंबर। देखिए एम और एन ये हमेशा क्या रहेंगे रैशनल, और एक्स और वाई ये रैशनल भी हो सकते हैं इरैशनल भी हो सकते हैं। व्हेन एक्स रेज़ टू पावर एम इंटू एक्स रेज़ टू पावर एन, यहाँ पे बेस सेम है और एक्सपोनेंट अलग है, तो यहाँ पे क्या होगा जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो यहाँ पे हमेशा एक्सपोनेंट की होती है एडिशन।
जब बेस सेम हो और एक्सपोनेंट अलग हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हमेशा क्या आएगा, एडिशन होगा। पावर में क्या होता है, एडिशन। ओके, एक्स रेस टू एम ब्रैकेट रेस टू द पावर एन। अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के ऊपर है तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज एम इंटू एन। नाउ एक्स रेस टू एम अपॉन एक्स रेस टू एन, ये क्या बनेगा आपका, एक्स रेस टू एम। यहाँ पे देखिए बेस सेम है और पावर अलग अलग है, तो यहाँ पे ये दोनों में जब भी डिवीजन का साइन आता है तो डिनोमिनेटर में हमेशा माइनस में चले जाता है ऊपर। ओके, डिनोमिनेटर हमेशा कैसे होगा, माइनस में जाएगा, एक्स रेस टू पावर एम माइनस एन। नाउ एक्स रेस टू एम मल्टीप्लाई वाई रेस टू एम। अब यहाँ पे बेस अलग है, देखिए एक्स और वाई ये दोनों बेस है, ये दोनों अलग अलग है और एक्सपोनेंट ये क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आएगा एक्स इंटू वाई रेस टू द पावर एम। ओके, एक्स रेस टू द पावर ज़ीरो। अब कोई भी नंबर हो, रैशनल हो इरेशनल हो, कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर ज़ीरो आता है तो उसका हमेशा आंसर क्या होगा, वन। नाउ एक्स रेस टू एक्स अपॉन वाई रेस टू द पावर एम, तो यहाँ पे हम सेपरेट कर सकते हैं, एक्स रेस टू पावर एम वाई रेस टू पावर एम, ये सॉल्विंग के लिए ईजी होता है। ओके, और अगर nth रूट ऑफ एक्स है तो इसको ही आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या लिख सकते हैं, एक्स रेस टू द पावर वन अपॉन एन। ओके, थैंक यू।